Nirvishesha Sunyavadi Paskachaya Satarina Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Sripasade Gaura Bhatta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Sripasade Gaura Bhatta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Sripasade Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Ram Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo. Swami Vishnupad Paramamsa Parapkacharya Satarasati Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada ISKCON BBT founder Acharya Ki. Swami Vishnupad Paramamsa Parapkacharya Astatarasati Srimad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki. Shri Guru Parampara Ki, Shri Rup Shri Sanatan, Shri Bhadranath, Shri Pakapala Bhatta Dasaranath Ki, Ananta Koti Vaishnavana Ki, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki, Premchiko Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavana Ki. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Kari Govardhan Ki, Shri Vrindavanam Ki, Shri Saranath Puri Dham Ki, Shri Navadvip Mayapur Dham Ki, Ganga Maya Yamunamaya Ki, Bhakti Devi Tulsi Devi Ki, Samaveta Bhaktavana Ki. All glories to the assembly devotees, all glories to the assembly devotees, all glories to the assembly devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Lotus tree is the spiritual master of the only way by which we can attain pure devotional service. I hold to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean and partake of suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from the lotus mouth. Attachment to the lotus feet
salvation and fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendent knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic flame emanates. By him ignorance is destroyed. The way to literacy of his word enter. Spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the golden master of devotees. O Lokanath Goswami, O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your name, your fame is spread all over the three worlds. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading, there's an echo. A strong echo.
This morning we will be reading from the Srimad Bhagavatamrita, volume 5, chapter 3, text 74 and following. आज हम श्री बृहद भगवतामृता से हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला भाग, तीसरा अध्याय, 47वां श्लोक, 74वां श्लोक। तस्मात्तुपि उपाविशा ब्रह्मन् रहस्यं परमं शनै कर्णिते कथयं येकं परमाश्रदया शृणु। I'm reading the word-for-word translation. Tasmat, therefore, Upavisha, please sit down. Brahman, O Brahmanam. Rahasyam, a secret. Paramam, supreme. Sanai, softly. Karne, in the ear. Te, you. Katayami, I shall tell. Ekam, one. Parama, absolute. Shraddhaya, with confidence. Shinu, please listen. Now the translation. So this is Lord Shiva speaking. So sit down, my dear Brahman, and I shall whisper in your ear a great secret. Please hear this with absolute confidence. तो नारद कह रहे हैं, शिव जी नारदा से कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए नारदा ब्राह्मणा, मैं आपके कान में एक बहुत ही गुह्य रहस्य जो है मैं आपके कान में बोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से आप सुनिए और श्रद्धा से सुनिए इसको। Commentary by Gopi Paranadhana Prabhu. Since the original personality of Godhead and his original consort have appeared on earth, Narada should put aside his eagerness to run off to Vaikuntha and should just sit for a minute to hear what Lord Shiva has to say. तो ये कह रहे हैं, नारदा कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान स्वयं जो है उस धराधाम में अभी हैं, तो हालांकि शिवजी ने जो वैकुंठ धाम के बारे में महिमा मंडन किया, तो नारदा को रुक जाना चाहिए, वैकुंठ जाने के लिए आतुर उन्हें नहीं रहना चाहिए, और जो शिवजी कहना चाह रहे नारदा से वो उन्हें सुनना चाहिए। Nor should Narada run immediately to Dvaraka without first listening to Lord Shiva's confidential advice. तो वही द्वारका भी उन्हें नहीं जाना चाहिए जब तक कि नारदा जो है शिवजी से जो गुह्य रहस्य सुने बगैर जो है उन्हें द्वारका भी नहीं जाना चाहिए, वैकुंठ भी नहीं जाना चाहिए, द्वारका भी नहीं जाना चाहिए। Because what Lord Shiva wishes to say should not be heard by everyone, not even by his personal associates. He wants to whisper it into Narada's ear, thus also avoiding the possibility of displeasing Parvati, who is a close friend of महालक्ष्मी। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि शिव जी जो हैं एक रहस्य जो हैं कहना चाहते हैं उनके, और जो औरों को वो चाहते हैं कि और लोग नहीं सुने, उनके परिकर जो है वो भी नहीं सुने, तो वो उनके कान में ये कहना चाहते हैं। और एक और चीज़ जिससे वो बचना चाहते हैं वो ये है क्योंकि इसके पहले जो है पार्वती देवी ने जो है महालक्ष्मी का गुणगान किया और शिवजी ने महाविष्णु का गुणगान किया, तो अब जो शिवजी जो हैं नहीं चाहते हैं कि लेकिन वो वैकुंठ जाएं, तो वो
पार्वती को भी जो है वो नाखुश नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं कि पार्वती सुने कि वो कह रहे हैं कि कहीं और जाए वो। So it are confidential talks that we will hear text 75 what Lord Shiva is to say. तो वो गुरुगुह्य रहस्य क्या है वो 75वें श्लोक में हम लोग सुनेंगे। Tvata tato mat gaudatitascha shreyopi karunya visheshapatam Pallada eva pratito jagatyam Krishnasya bhakto nitaram priyascha. Translation. There is a greater recipient of Krishna's mercy than your father, me, and other servants like Garuda, and even than the goddess of fortune. His name is Prahlad. He is famous throughout the world as the dearmost devotee of Krishna. तो ये कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान के जो कृपा के जो पात्र जो हैं, विशेष कृपा के जो पात्र जो हैं वो एक और हैं। वो मतलब आपके पिताजी, नारदा के पिताजी है ब्रह्मा, मैं शिवजी और फिर भगवान के जो सेवक जो हैं गरुड़ या भगवान की अर्धांगिनी श्रीदेवी, तो इन सब से भी बढ़कर एक हैं जिनको भगवान की कृपा विशेष मिली है, वो है उनका नाम है प्रहलाद। वो जो है पूरे ब्रह्मांड में भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में वो जाने जाते हैं, प्रहलाद। Now the commentary. Do not expect to fulfill your intentions by visiting Dwarka just now, Lord Shiva is telling Narad. तो कह रहे हैं कि आप क्योंकि नारदा की चेष्टा ये है कि वो कृष्ण भगवान की कृपा के पात्र, सबसे विशेष कृपा के पात्र ढूंढना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप द्वारका भी नहीं जाइए तो आपका जो है वो इच्छा जो है वो पूरी नहीं होगी अभी। There is a devotee in this world even greater than the supreme goddess of fortune, and that is Prahlad. कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी जो है एक और भक्त हैं जो ये श्रीदेवी जो महालक्ष्मी से भी बढ़कर हैं और उनका नाम है प्रहलाद। Before going anywhere else, you should visit him. कहीं और जाने के पहले आपको जो है वहाँ पर प्रहलाद के पास जाना चाहिए आपको। Because Prahlad's devotion to the Supreme Lord is so deep, he is exceptionally dear to the Lord. क्योंकि प्रहलाद महाराज की जो भक्ति जो है वो इतनी प्रगाढ़ है बस अपने स्वामी के लिए कि वो जो है भगवान को अत्यंत ही प्रिय है वो। He is greater than all the Lord's servants in Vaikuntha, including Garuda and Vishpakshena and even Lakshmi. तो कह रहे हैं कि प्रहलाद जो है वैकुंठ वासियों में जो भगवान के जो भक्त हैं उन सब से वो श्रेष्ठ हैं। गरुड़, विश्वक्सेना और स्वयं महालक्ष्मी से भी बढ़कर प्रहलाद हैं। Text 76. अब 76वां श्लोक। Bhagavat vachanani tvam kimno vishmritavanasi aditani puraneshu slokam etam nakim smare. Surely you haven't forgotten the Supreme Lord's words about this. You must have read them in the Puranas and must remember the following verse. तो कह रहे हैं नारदा से कह रहे हैं शिव जी, तो आपको तो ये सब आप भूले नहीं होंगे, आपने पुराण पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, तो ये जो श्लोक अभी जो इंकित करने वाले हैं शिव जी वो आपको अवश्य याद होगा ये प्रहलाद के बारे में जो कहता है। Naham atmanam asase madbhaktai sadabirvina sheyam atyanti kim vapi yesham gatir aham para. Without saintly persons for whom I am the only destination, I do not desire to enjoy my transcendental bliss of my supreme opulences. तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो हैं जिनका मैं गंतव्य हूँ, फॉर होम आई एम द ओनली डेस्टिनेशन, तो मैं जो है डू नॉट डिज़ायर टू एंजॉय, तो मेरे जो सारे जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनका भी मैं जो भोग जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहता, मतलब भक्त जो है वो मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। So, commentary. This verse spoken by the Supreme Lord to Durvasa Muni in the 9th canto of the Srimad Bhagavatam 9.464 is cited here to establish the greatness of the Vaishnavas
in general. तो ये नवा स्कंद का ये दुर्वास मुनि लीला में जो है, अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि की लीला में भगवान जब दुर्वास मुनि जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जो है वैष्णवों का गुणगान करते हुए जो है ये श्लोक को वो इंगित करते हैं। The personality of Godhead derives great satisfaction from his pure devotees on the earth and elsewhere, and in contrast he is not so much attracted to his own consort in Vaikuntha or the imperishable opulence she creates for his pleasure. तो कह रहे हैं कि जो भगवान जो है मेरी आंखें जो हैं वो जो हैं और अत्यधिक प्रसन्नता जो है उनके वैष्णवों का संग जो है, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज प्योर, उनके शुद्ध भक्तों का संग जो है, जो जहाँ चाहे वो कहीं भी हो तो उनका संग जो है उनके लिए और अधिक प्रिय है, इसके बदले में कि उनकी खुद की जो स्वामिनी जो हैं वो वैकुंठेश्वरी उससे भी, या फिर ये जो उनके जो दिव्य विभूतियाँ हैं उन सब से भी जो है उनके लिए जो वैष्णव का संग जो है वो अत्यधिक प्रिय है। Nor is he much attracted to it by his own beauty. भगवान जो अपने सौंदर्य से भी वो आकर्षित नहीं होते हैं। As the Lord further told Durvas, Aham Bhakto Paradino Yi Asvatandra Ivachviya Sadhubir Kastaridayo Bhakter Bhakta Chana Priya. I'm completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent, because my devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the course of their hearts, not to speak of my devotee. Even the devotees of my devotees are very dear. तो कह रहे हैं भगवान दुर्वास मुनि से कह रहे हैं कि मैं जो है पूरे भक्तों के मैं अधीन हूँ, मैं पूरी तरह उनके वश में हूँ, मैं स्वराट में हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे भक्त जो हैं ये पूरे जो हैं उनके हृदय में कोई अन्य अभिलाषाएं से वो शून्य हैं, तो मैं उनके हृदय में मैं विराजमान रहता हूँ, उनके हृदय में रहता हूँ। व्हाट टू स्पीक ऑफ माय डिवोटीज, मेरे भक्तों का क्या कहना, जो मेरे भक्तों के जो भक्त जो हैं वो भी मुझे बहुत ही प्रिय। Maya nirbada hridaya sadavasa madakshina Pasikarvanti mam bhaktya satsriya satpatimyata. A chaste woman bring their chaste women bring their gentle husbands under control by service. Pure devotees who are equal to everyone are completely attached to me in the core of the heart. Bring me under their full control. तो जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री जो हैं अपने सौम्य पतियों को जो अपने वश में रखती हैं, तो इसी तरह शुद्ध भक्त जो हैं जो सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं वो पूरी तरह मेरे से आसक्त हैं और अपने हृदय में जो है मेरी तरह पूरी तरह आसक्त हैं और इस तरह मुझे जो है अपने वश में कर लेते हैं। जैसे कहा उन्होंने भक्त के अधीन है भगवान। Uddhav heard similar words from Sri Krishna. उद्धव जो है उन्होंने भी जो है कृष्ण भगवान से ऐसे ही शब्द सुने हो। न तातमे प्रयातमा आत्मचोन संकरा न संकर्षणो न श्रेय नैवात्मा चथा भवन्। My dear Uddhav, neither Lord Brahman, Lord Shiva, Lord Shankarshan, the goddess of fortune, nor indeed my own self is as dear to me as you. तो उद्धव से कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि ब्रह्मा जी भी नहीं, शिव जी भी नहीं, संकर्षण भी नहीं और श्री देवी महालक्ष्मी भी नहीं, मुझे आप जितने प्रिय नहीं हो। उद्धव से कह रहे हैं 11वें स्कंद में। Srila Sanatana Goswami comments that Sri Krishna in this verse from the Bhagavatam meant to make the general statement that no one else is as dear to him as his pure devotees,
But because Krishna came so ecstatic thinking about the specific glories of his devotees, instead of saying my devotee, he unintentionally said, you Uddhav. तो सनातन गोस्वामी जो है ये अपने टीका में समझाते हैं कि यहाँ पर क्योंकि भगवान जो उद्धव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये सबसे भी आप मुझे प्रिय हो। तो लेकिन कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, लेकिन भगवान का उद्देश्य ये था कि वो तो मतलब जनरली मतलब एक जनरल बात करें वो कि जो शुद्ध भक्तों से अत्यधिक प्रिय कोई नहीं है। हाँ, लेकिन कृष्ण भगवान जो हैं अपने शुद्ध भक्तों की महिमाओं के बारे में जब वो सोचने लगे, वो इतने मग्न हो गए, वो इतने उनके होश जो है वो खो बैठे कि मतलब जनरली बोलने के बदले कि मेरे डिवोटी जो है शुद्ध भक्त जो हैं उनके बदले उन्होंने न सोचते हुए न समझते हुए उन्होंने उद्धवा कहा, ऐसा कह रहे हैं। ओम अज्ञानातिमन्नस्य चनंचनाशनका चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिच्चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतापादकमलं शिरं वैष्णवं च श्रीरूपं जगज्जातं सगणरघुनाथं पितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सकालिता शिवशाखां वितंस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। पंककल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचकतारिणे। Srila Prabhupada ki. So this usually I don't give classes on the Brihad Bhagavatamrita. That's it. But Brihad Bhagavatamrita, my Guru Maharaj said, it's my favorite book. That and Brihad Bhagavatamrita has two stories. ब्रिहद भगवतामृता में दो कथाएं हैं। It's written by Sanatana Goswami. सनातन गोस्वामी ने जो है ये इसकी रचना की है। Sanatana Goswami is the elder brother of Rupa Goswami. जो रूप गोस्वामी के अग्रज हैं। Sanatana Goswami was also senior as a devotee because he was the one who became first devotee and then Rupa Goswami. तो कह रहे हैं कि और सनातन गोस्वामी जो है वो सबसे वरिष्ठ भी हैं भक्त, क्योंकि वो पहले चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने, उसके बाद रूप गोस्वामी भक्त बने। So one story is that Narada Muni is seeking the devotee who got the most mercy of the Lord. तो पहली कथा जो है भाग एक में जो है वो है कि कृष्ण भगवान की कृपा के जो पात्र सबसे विशेष रूप में जिसको मिली है, तो नारदा उसकी खोज कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। And he's searching factory for the great devotee. तो इस तरह वो ढूंढ रहे हैं सबसे भगवान के कृपा के पात्र जो विशेष जो हैं वो। And the other story is the story of Gopakumar. और दूसरी कहानी भाग दो जो है उसमें है जो गोप कुमार की कहानी। But here we have the first story. हम यहाँ पर अभी पहले भाग में हैं। And we have this
commentaries of Gopi Paranadhana Prabhu. और हम जो पढ़ रहे हैं, जो टीकाएं जो हैं गोपी पारणधर्म प्रभु, जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य जो हैं उनका हम पढ़ रहे हैं. In 2001 I was in Mayapur following Bhakti Shastri. अब 2001 में महाराज जो हैं भक्ति शास्त्री पढ़ा रहे थे कि कर रहे थे? आनंद क्या कहा? कर रहे थे. हाँ, भक्ति शास्त्री कर रहे थे महाराज 2001 में मायापुर में. And I took prasad in the Brahmachari ashram. तो वहाँ पर जो है प्रसाद जो है महाराज ने ब्रह्मचारी आश्रम में लिया. And every noon, Gopi Paranadhana Prabhu was there, and he was just sitting beside me, very humbly. और दोपहर को जो है उस समय जो है जब मैं प्रसाद ले रहा था तो मेरे बाजू में जो है गोपी पारणधन प्रभु जो है बड़े विनीत भाव में मेरे साथ बैठे हुए थे, वो भी प्रसाद ले रहे थे. Just like other brahmachari, all the other devotees, he was. जैसे कि वो भी एक सामान्य भक्त जैसे अन्य ब्रह्मचारियों की तरह मेरे साथ बैठकर जो है वो बाजू में प्रसाद. There was no point of I'm a Prabhupada disciple or what. No, very simple. तो कहने की ऐसा कोई हाव भाव नहीं था उनमें कि मैं प्रभुपाद का शिष्य हूँ और ऐसा कुछ उनको स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह कुछ चाहिए ऐसा कुछ. So yes, this humility that makes him qualified to read, to compile this period Bhagavatamrita and write the commentaries. तो ये कह रहे हैं कि गोपी पारणधन प्रभु की विनम्रता जो है वही उनको अधिकार देती है कि जो सनातन गोस्वामी की जो ग्रंथ जो है बृहद भगवतामृता पर वो टिप्पणियां करें, टीका दें, अनुवाद करें. If we have this deep humility, Krishna uses us as his instruments. अगर हम विनीत भाव में रहते हैं तो भगवान जो है हमें अपने निमित्त के रूप में जो है जैसा वो चाहते हैं वैसा हम उन्हें उपयोग करते हैं हमें. If we don't have this humility, then we are covered by upadis, coverings. तो और अगर हमारे पास ये विनम्रता नहीं है तो can you last part? Upadis, false ego, coverings. तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वो विनम्रता नहीं है तो हम जो है हम चलायमान किससे होते हैं? हमारे अहंकार जो है वो हमें चलाता है, हमारी उपाधियां जो हैं उससे हम चलते हैं, अहंकार से चलायमान होते हैं हम. By discovering there's no contact with Krishna. और ये कह रहे हैं कि और ये जो है मतलब ये जैसे पानी और तेल जो है वो मेल नहीं खाता है, इस तरह ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते. But this deep humility is a sign that these coverings are removed. तो कह रहे हैं कि जो अत्यंत जो दैन्य भाव जो है ये जो है मतलब भगवान के ये जो गुह्य रहस्य जो है उनको समझने की हमें देता है अनुमति या अधिकार. This is Narada Muni's definition of pure devotional service. Sarva upadhi vinirmuktam, all coverings should be removed. तो नारद मुनि ने जो दिया है भक्ति की परिभाषा नारद चरात्र में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. तो ये है उपाधियों को हटाकर भगवान की सेवा करना. So Narada Muni goes from one devotee to another. और नारद मुनि इस तरह जो है एक भक्त से दूसरे भक्त की तरफ वो जाते हैं. And it's always the same scenario. और वो रिफ्रेन है, जैसे एक रिफ्रेन जैसा मतलब बार बार वही थीम है कि जहाँ पर भी वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, बट ये जो भक्त जो हैं आई एम नॉट मच ऑफ अ डिवोटी बट दिस डिवोटी ही इज अ ग्रेट डिवोटी. दैट्स द रिफ्रेन. गो अहेड. Yeah. So the thing is that Narada Muni goes to the devotee and start to glorify this devotee. Yeah. तो थीम यही है कि नारद जो है एक भक्त के पास जाते हैं और उस भक्त का जो है गुणगान जो है वो शुरू करते हैं. What happens? The devotee feels embarrassed. और वो जो भक्त जो है वो क्या वो उसे लज्जा आती है जब अपना गुणगान वो सुनता है तो उसे शर्म आती है. So, no, I'm not the greatest devotee. और वो कहते हैं कि नहीं मैं इतना बड़ा चढ़ा भक्त नहीं हूँ, लेकिन this is a greater devotee. You go to this. लेकिन आप इनके पास जाइए तो वो हैं वो बड़े चढ़े भक्त. Then this is also happening here. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है. But Lord Shiva is bringing up a very confidential point.
तो लॉर्ड जो शिव जी जो यहाँ पर बहुत ही एक गुह्यतर जो रहस्य जो है वो नारदा को बता रहे हैं. that something which is also a bit delicate for us to speak on. करेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा जैसे मतलब थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है, जटिल विषय है बात करने की, क्योंकि पार्वती देवी वहीं पर हैं और पार्वती देवी जो है जैसे हमने सुना महालक्ष्मी का गुणगान कर रही हैं. Because there is a rivalry in service between Prahlad and the goddess of fortune. तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रहलाद और श्रीदेवी महालक्ष्मी भी जो है एक स्पिरिचुअल मतलब एक आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा है दोनों में, तो इसलिए थोड़ा शिव जी जो है थोड़ा ध्यान से चल रहे हैं. Because the goddess of fortune always remains with Lord Nrsingadev. क्योंकि महालक्ष्मी जो है श्रीदेवी जो है वो हमेशा नरसिंहदेव के साथ रहती हैं वो, And she's always serving. वो हमेशा उनकी सेवा करती रहती हैं, पाद सेवनम. But then Prahlad is serving the Lord, and the Lord is very attracted to Prahlad. और प्रहलाद जो है वो भी लेकिन भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो प्रहलाद के प्रति भगवान जो है बहुत आकर्षित हैं, तो ये थोड़ा प्रतिस्पर्धा का भाव. It's delicate because usually we don't want to displease the goddess of fortune because we want a lot of fortune. और ये थोड़ा विषय भी थोड़ा जटिल है हमारा पता, क्योंकि ये थोड़ा क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हम जो है महालक्ष्मी श्रीदेवी को हम जो है अप्रसन्न करें. हम भगवान को प्रसन्न तो करना चाहते हैं लेकिन उनको अप्रसन्न नहीं करना चाहते हैं. But then you have Prahlad here who is considered a greater devotee. लेकिन यहाँ पर प्रहलाद है जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तात्पर्य में गरुड़ा, विश्वक्सेना, श्रीदेवी, महालक्ष्मी से भी उनको जो है ऊपर मान रहे हैं. Because this relationship is very intimate between Prahlad and Lord Nrsingadev. क्योंकि भगवान और नरसिंहदेव, प्रहलाद और नरसिंहदेव के बीच में जो है ये जो रहस्य जो संबंध जो है ये बहुत ही गुह्य है, गुह्यतम गुह्यतर ऐसा संबंध है ये. And Lord Vishnu explains this to Durvasa Muni. और विष्णु भगवान जो दुर्वासा मुनि को कहते भी हैं, और उस श्लोक में हमने पढ़ा था तो उसमें महालक्ष्मी का भी जिक्र आता है. Yeah, in that he specifically calls out about Mahalakshmi also. Yeah. Durvasa Muni had offended Ambarish Maharaj. दुर्वास मुनि ने जो है अम्बरीश महाराज को के प्रति अपराध किया था. And Ambarish Maharaj has tried to take shelter of Lord Shiva, Lord Brahma, but they say, no, we cannot help you. तो दुर्वास मुनि जो है जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भाग रहा था तो दुर्वासा मुनि जो पहले शिव जी के पास गए, फिर ब्रह्मा के पास गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, आपको विष्णु के पास जाना चाहिए, सुदर्शन चक्र उनका है. And then Durvasa Muni goes even to Vaikuntha to see the Lord Vaikuntha, Lord Narayan. तो दुर्वासा मुनि फिर आखिरकार जो है वो वैकुंठ पहुंचते हैं और वैकुंठपति नारायण के दर्शन के लिए वो जाते हैं. Lord Vishnu. दर्शन तो नहीं होता, सुदर्शन चक्र को भगाने के लिए. And Lord Vishnu says, my devotee always think of me. मन मना भव मद भक्तो, कहते कि मेरा जो भक्त जो है हमेशा मेरे बारे में वो सोचता रहता है. And I think always of my pure devotee. और मैं जो है मेरे भक्त को याद करता हूँ, मेरा भक्त मुझे याद करता है, मैं मेरे भक्त को याद करता हूँ. My pure devotee does not know anything else than me. मेरा शुद्ध भक्त जो है मेरे अलावा कुछ नहीं जानता है. And I do not know anything else than my pure devotee. और मैं जो है मेरे शुद्ध भक्त के अलावा मैं किसी को नहीं जानता. So that is a very intimate relationship. बहुत ही गुह्यतर संबंध है ये. In Nectar of Devotion, we read that there are 6 qualities of pure devotional service. तो भक्ति रसामृत में पढ़ते हैं कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं. And one of the highest qualities is that by pure devotional service, the devotee brings the Lord under his control by his love. तो ये आखिरी जो लक्षण जो है, एक लक्षण ये है कि वह शुद्ध भक्ति के आधार पर जो भक्त जो है भगवान
को अपने वश में कर लेता है, भक्त के पराधीन हो जाते हैं भक्त भगवान। When I got first initiation, my Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Maharaj gave me the brahmachari name Lila Sukdas. ओके, तो जब मेरा पहला हरिनाम दीक्षा हुआ तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो है जब नाम दिया ब्रह्मचारी था तब मैं, तो लीला सुख दास। Lila Suk is a name of Bilva Mangal Thakur. बिल्व मंगल ठाकुर का एक और नाम है। And Bilva Mangal Thakur, he said he was blind, Yeah. but he was had become a pure devotee. It's a whole story. या तो एक लंबी कहानी है बिल्व मंगल ठाकुर की। वो अंधे हो गए थे, मुझे याद है, वो वैश्य वगैरह प्रोस्टिट्यूट पियर्स, वो लंबी कहानी हमारे बता रहे हैं। लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर जो हैं वो भगवान के बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे। And Bilva Mangal Thakur said to Krishna that you cannot escape. I've imprisoned you in my heart. बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं उनसे भगवान से कि आप बच नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते हो, मैंने आपको अपने हृदय में आपको मैंने बंद कर लिया, कैद कर लिया। So the pure Krishna becomes attracted to his pure devotee. तो कृष्ण भगवान जो है वो एक अपने शुद्ध भक्त से जो है वो आकर्षित होते हैं। And to the extent that he becomes the servant of his devotee. और उस हद तक कि भगवान जो है उनके दास बन जाते हैं, उनके सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। When Lord Chaitanya was touring in South India, I think he came at Srirangam. जब चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो वो श्रीरंगम पहुंचे। And at the front of the temple there was a Brahman reciting the verses of Bhagavad Gita. हाँ, तो मंदिर के प्रांगण में जो एक ब्राह्मण जो है वो भगवत गीता के श्लोकों को गा रहा था। But he was reciting all the verses practically wrong. The Sanskrit was not correct. हाँ, तो लेकिन वो मतलब जो ठीक से वो उसका उच्चारण नहीं कर रहे थे और श्लोक जो है वो ठीक से वो नहीं गा रहे थे। Because all the locals knew is illiterate, he cannot read. हाँ, तो सब लोगों को पता था कि अनपढ़ गंवार है ये, तो पता नहीं, लेकिन भगवत गीता के श्लोक का उच्चारण कर रहा है, ठीक से कर भी नहीं रहा है, तो सब लोग जानते थे वहाँ के। And they were joking with him. तो उसका वो मजाक उड़ाते थे कि देखा भगवत गीता पढ़। But when Lord Chaitanya came, he heard him reciting. चैतन्य महाप्रभु जो है जब उन्होंने सुना इस ब्राह्मण को या इस व्यक्ति को ये श्लोकों को गाते हुए, And he had a book before him. उनके किताब उनके सामने थी। And that Lord Chaitanya inquired from him, you are reading, you are reciting these verses, but they are not all correct. But tell me what's happening. हाँ, तो कह रहे हैं आप ये श्लोकों को आप गा तो रहे हो लेकिन आप ठीक से गा नहीं रहे हो, और मैंने सुना है कि आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, लेकिन आपकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? So the Brahman was feeling that this inquiry is sincere. It's not like all the others who try to joke with him. तो ब्राह्मण को लगा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछ रहे हैं, मतलब वो जेन्युइनली पूछ रहे हैं, मतलब बाकी सब लोग तो मजाक उड़ा देते हैं उनका ऐसे ही कि क्या समझ रहे हो करके, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो प्रश्न जो था इस ब्राह्मण से, उनको लगा कि ये सत्यनिष्ठ प्रश्न है ये। And he said that yes, my spiritual master has ordered me to read every day all the slokas of the Gita. तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि हर दिन जो है ये सारे भगवत गीता के 700 श्लोक जो हैं उनको मैं हर दिन में पढूं। But I'm illiterate, I cannot read. लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। But I'm trying to follow the लेकिन order मैं of वो my spiritual जो master. आदेश जो दिया है उसको मैं पूरी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। Lord Chaitanya inquired, but while you are reciting, then I see tears are coming from your heart, from your eyes. तो अच्छी बात है, और मैं देख रहा हूँ कि जब ये आप श्लोकों को गा रहे हैं तो आपके आंखों में से अश्रुओं की धारा बह रही है, तो ये क्या है? He said, the Brahman said, yes, because when I see this picture on the covering of the Bhagavad Gita,
with Krishna serving his devotee Arjun as a chariot driver, out of love for his devotee Arjun, tears are coming from her. तो कह रही है ये आंखों के पीछे, ये अश्रुओं की धाराओं के पीछे ये बात ये है कि जब मैं ये देखता हूँ भगवान जो हैं कि अपने अर्जुन, अपने सखा के लिए, अपने भक्त के लिए, पार्थ के लिए, वो पार्थ सारथी जो हैं, हालांकि वो भगवान स्वयं हैं, वो उनके सेवक के रूप में, उनके वाहन चालक के रूप में पार्थ सारथी बन के हैं। तो ये जब मैं सोचता हूँ तो भगवान का प्रेम जो उनके भक्तों के प्रति, तो मुझे इस तरह हो रहा है। And Lord Chaitanya embraced him चैतन्य महाप्रभु उनका उन्होंने आलिंगन कर लिया। and said, "You have understood Bhagavad Gita." तो आपने भगवत गीता को समझाया। And that in that way, this is the way to understand Krishna. तो इस तरह ये भगवत गीता को आपने ठीक से समझाया और ये इसी तरह कृष्ण भगवान को समझा जाता है। Only by Bhakti Amam Shivyanati Bhakti Amam Abhijanati Javnyasasmi Tattvata. Only by pure devotional service one can understand Krishna. तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्तिया माम अभिजानाति, तो भक्त ही से, केवल भक्ति योग से, भक्ति से ही मुझे जान सकता है और कोई किसी और चीज से कोई समझ नहीं सकता उन्हें। That's one effect of pure devotional service. तो वो एक है शुद्ध भक्ति का एक अंग। Krishna gives us the understanding of the scriptures to the heart, and by that we get to know him. तो कृष्ण भगवान जो हैं शास्त्रों का पूरा मर्मज्ञ जो ज्ञान जो है वो आपके हृदय में देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। Another symptom of pure devotional service, or another benefit, is mamsyo gabacharina bhakti yogana sevate saktam samatichitam brahmabhuya kalpate. By pure devotional service, one immediately transcends the modes of nature. तो कि एक भगवत गीता का श्लोक है, मम चायो भक्ति रव्याभिचारिणी सगुणान समित चेतान ब्रह्म भूय कल्पते। तो भक्ति का एक और लक्षण ये है कि जब हम शुद्ध भक्ति का संचालन करते हैं तो हमें तीनों गुणों से हम अतीत हो जाते हैं। But here we learn Krishna comes under control of the devotees. लेकिन यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि हम गुणों के अतीत की बात करें, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं जो है शुद्ध भक्त के वश में वो आ जाते हैं। So Krishna comes under the control of Srimati Radharani. कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी के वश में आ जाते हैं। And this to the extent that he was wondering, how does she do that? तो ये how can she do that she controls me? तो महाराज पूछ रहे, ये सोचने का विषय है कि राधा रानी वो करती कैसे, कृष्ण भगवान को अपने वश में कैसे रखती हैं। And it seems that she gets more pleasure than me. और कृष्ण भगवान सोचते हैं कि राधा रानी जो है जब वो सेवा करती है तो ऐसा प्रतीत होता है, समझ में आता है कि वो जो है उसका जो उल्लास जो है मेरे उल्लास से भी अधिक है। And Krishna was thinking, what is it in me that attracts her? तो कृष्ण भगवान सोचते हैं कि मेरे में ऐसा क्या है जिससे राधा रानी जो है आकर्षित होती हैं। By which she controls such a love that she's able to control me. तो इतना उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उस प्रेम से वो मुझे बांध लेती है, मुझे वश में कर लेती, मदन मोहन मोहिनी। So she wanted to Lord Krishna wanted to know how this works. तो कृष्ण भगवान स्वयं चाहते हैं कि ये कैसा, ये क्या टेक्नोलॉजी क्या है, हाउ डज दिस वर्क, कैसे कैसे होता है। Therefore, these are the internal confidential reasons why Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu. तो ये सब अंतरंग कारण है, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बहिरंग कारण है, अंतरंग कारण है। तो भगवान जो है चखना चाहते हैं विषय आश्रय, मतलब राधा रानी क्या एहसास करती है उसको चखना चाहते हैं भगवान, इसलिए कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। But a devotee knows the heart of the Lord and what he desires. क्योंकि भक्त जो है वो अपने स्वामी के हृदय को वो जानता है, भगवान क्या चाहते हैं उसे उसकी परख है, समझ है। Like Bhakti Swarup Damodar Maharaj, he knew the heart of Lord Chaitanya.
जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, मतलब स्वरूप दामोदर जो है चैतन्य महाप्रभु के हृदय को वो जानते थे। And Bhakti Swarupa Damodar was the secretary of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु के वो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर। He's a confidential associate. भगवान के बहुत ही अंतरंग पार्षद परिकर थे वो स्वरूप दामोदर। And when Lord Chaitanya was in a certain mood, then Bhakti Swarup Damodar would chant some verses in agreement with that mood. रथ यात्रा वगैरह में तो जब यहाँ गंभीरा में महाराज बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु को इसी एक स्पेसिफिक भाव में होते थे तो स्वरूप दामोदर को पता होता था कि कौन से भागवतम के श्लोक या शास्त्रों के श्लोक गाया जाए जो भगवान के उस भाव को और उज्ज्वलित करे, प्रज्वलित करे। And also Ramananda Roy knew the heart of रामानंद राय भी इसी तरह उनको पता था। I think that even that in the spiritual world, Bhakti Swarup is Lalita, I think, Correct. and Ramananda Roy is Vishaka. हाँ, ये दोनों जो है आध्यात्मिक जगत में ये भगवान हमें राधा रानी के ये संगीगण है, ये ललिता और विशाखा, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। And when Lord Chaitanya had his ecstasies in the mood of Srimati Radharani, then Ramananda, they would be together, Ramananda Roy, Bhakti Swarup Damodar and Chaitanya Mahaprabhu. They would discuss. जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के महाभाव में जब वो गंभीरा में इस तरह प्रवेश करते थे तो और कोई संभाल नहीं पाता था उनको। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जो है वो जो है शास्त्रों का उल्लेख और उनको सांत्वना देते थे। तो इस और शास्त्रों की चर्चाएं जो हैं, जो पर्याप्त शास्त्र जो हैं उनकी चर्चाएं होती थी। ये Because Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Mamaevam Sarchiveloka Jiva Bhuta Sanatana, we are all part and parcels of Krishna. कृष्ण भगवान कहते हैं मम एवं च जीव लोक जीव भूत सनातन, हम सब जो है कृष्ण भगवान के अंश हैं। So we are all also Krishna, but a small spark of Krishna. अचिंत्य भेद अभेद तत्व, हम भी आध्यात्मिक है, हम भी सच्चिदानंद है, हम भी कृष्ण भगवान, कृष्ण नहीं है मतलब हम अणु हैं, भगवान विभू हैं, लेकिन हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। So yes, therefore, what does Krishna want? तो भगवान and what do we want? तो भगवान क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं? That I explain it with the words of Radhanath Maharaj, very simple. राधानाथ महाराज के शब्दों में बहुत ही सरलता से वो समझाते हैं कि हमें क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए। Sometimes he speaks to general public who don't know about Krishna. कभी कभी राधानाथ महाराज जो हैं सामान्य जनता से जनताओं को प्रवचन संबोधित करते हैं जिनको कृष्ण भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, तो बड़े सरल भाषा में समझाते हैं। He said, what do we all want? हम सबको क्या चाहिए? We want to love and be loved. हमको प्यार चाहिए और हमें किसी को प्यार करने के लिए कोई चाहिए और प्यार चाहिए। But do we attain that in this world? लेकिन क्या वो हमें मिलता है इस दुनिया में? No. नहीं। Prabhupada said, one should be thoroughly convinced that there is no love in this world. तो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा कि हमें ये ठोस विश्वास होना चाहिए कि इस भौतिक संसार में प्रेम नाम की चीज नहीं है। This so-called love is lust. जो हम जिसको हम प्रेम कहते हैं वो काम है। In Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 6, I think, there Krishnadas Kaviraj Goswami explains in many verses the difference between lust and love. तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 6ठे अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है ये प्रेम और काम में जो फर्क जो है वो कई श्लोकों में बताते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति। Love, so-called love in this world is factually lust, and lust means striving for the satisfaction of one's own senses, one's own mind, one's body. तो ये जो इस दुनिया में जो हम प्रेम कहते हैं वो एक्चुअली वो काम है। और काम क्या है कि हम केंद्रित हैं
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। तो हम जो है अपनी इंद्रियों को, जड़ इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को, मन को, इनको जो है हम खुश करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसको काम कहते हैं। But love means giving pleasure to the senses of Rishikesh, the Supreme Lord. लेकिन प्रेम जो है वो कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, तो कृष्ण भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना वो प्रेम है। But when we try to give that love to Krishna by serving Krishna, then Krishna gives us ecstatic love in our heart. और जब हम कृष्ण भगवान की इंद्रियों को हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो कृष्ण भगवान जो है हमारे हृदय में जो है वो अद्भुत जो है प्रेम जो है वो की उमंग जो है वो देते हैं हमें। That is Krishna's तो reciprocation. कृष्ण भगवान का ये आदान प्रदान है इस That because he is the fountainhead of all rasa. तो वो रसो वैसा है कृष्ण भगवान, फाउंटेन मतलब सबके स्तोत्र, सारे रसों के स्तोत्र जो है वो भगवान है। And when we are connected with that fountainhead of all rasa, then we are filled with this rasa. और अगर हम उस स्तोत्र से जुड़े हुए हैं, योग है हमारा, कनेक्टेड है, तो हम भी वो रस का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। And we obtain this love for which we are always hankering for. और फिर हम जिसके हम पीछे भाग रहे हैं, जिस प्रेम की हम लोग कामना कर रहे हैं, जिस प्रेम के हम लोग पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह, तब हम जो है इस तरह कृष्ण भगवान के इंद्रियों को जब हम प्रसन्न करते हैं, तब हमें वो प्राप्त होता है। Okay. क्या हो गया? हाँ, स्क्रीन। See? It's not. Yeah, it's a technical thing. But the last thing I want to say is, because it's about Prahlad Maharaj, what was the quality of Prahlad Maharaj that attracted Lord Nrsimhadev to take care of him? तो लेकिन ये क्योंकि विषय जो है प्रहलाद महाराज हैं, तो आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि प्रहलाद महाराज में ऐसा क्या विशेष गुण था जिसके कारण नरसिंह भगवान जो है उनको बचाने के लिए जो है वो बाध्य हो गए। My spiritual master said, yes, he explained it's like children are under the care of their parents. तो मेरे गुरु महाराज बताते हैं जैसे बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के संरक्षण में वो रहते हैं। They don't worry, my parents will take care. तो वो जो है मतलब चिंता नहीं करते, देखा खेलते रहते हैं, उनको चिंता नहीं है, मेरे माँ बाप जो है मेरा ध्यान रखेंगे। And if children has good parents, then the parents do make wonderful arrangement for the children. और अगर माता पिता जो हैं जो सभ्य हैं और अच्छे हैं, तो वो सारे जो योजनाएं जो हैं, सारे जो आवश्यकताएं जो है बच्चों की, वो सारे आवश्यकताओं को पूरी करते हैं वो। So in that same way, Prahlad Maharaj was putting himself under the care of Krishna. तो इसी तरह प्रहलाद महाराज जो है वो बिल्कुल निश्चिंत भाव में अपने आप को पूरी तरह भगवान के शरणागत वो थे, वो भगवान के चरण कमलों में अपने को उन्हें स्थित कर लिया। And that's a mood we all can develop in our life. और ये भाव जो है हम सब लोग को इसको विकसित करना चाहिए। Let Krishna take care. कि कृष्ण भगवान जो है हमारे पालनहार है। That faith that Krishna will take care of me. विश्वास पालना अवश्य रक्षिबे कृष्णा। तो ये जो प्रहलाद महाराज में जो है ये गुण था, ये तो हमें भी जो है वो उसको विकास करना चाहिए कि भगवान जो है अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। Srila Prabhupada told a story told by Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. तो श्रील प्रभुपाद जो है एक कहानी बताते हैं। And that was near to the coast, Dwarka. There people were on a boat in the Arabian Sea. तो एक बार जो है कई सारे लोग जो हैं एक नाव में अरब महासागर में एक नाव में वो सब थे। And there was also a mother with a young child. Sorry? A mother with a young child were aboard of the boat.
अच्छा, तो वहाँ पे उस नाव में जो है एक माँ भी थी जो एक छोटे बच्चे की माँ थी। And there was a big storm. तो बड़ा एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, तूफान। And the boat was going up and down on the waves, and everyone was thinking, this is the end, we are going to drown. And they started to chant, to shout, and were in panic. ओके, और ये जब जो है इस तरह जो है नाव जो है मतलब इस तूफान में जो है वो सारे जो लहरें जो है वो नाव को उछाल रहा था इधर उधर, और सब लोग जो है मतलब भयभीत होकर जो है चिल्ला रहे थे इस तरह। But this young boy, 5 years old, लेकिन ये छोटा सा बच्चा 5 साल का जो है वो remained peaceful. वो शांत था बिल्कुल। Finally, the storm was over, nobody was drowned. तो बाद में जो तूफान जो है वो चला गया और ऐसा कुछ हुआ नहीं जो लोग सोच रहे थे, कोई डूबा नहीं। And he asked the young boy, why are you so peaceful? Why? तो उन्होंने सबसे पूछा कि आप इतने बड़े तूफान में आप कैसे इतने शांत थे? And the boy said, well, my mother is here, so what's the problem? तो बोले मेरी माँ है मेरे साथ, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? He had so much faith in that the mother will protect me. तो उनमें इतनी श्रद्धा थी, उन प्रकार श्रद्धा थी कि मेरी जो माँ जो है वो मुझे बचाएगी। And Prahlad Maharaj was complete surrender to the Lord. The Lord will take care of me. प्रहलाद महाराज जो है पूरी तरह शरण, तो शायद उसकी माँ पहले घबराई नहीं होगी घबराई हो तो सॉरी ये मेरा कमेंट्री। तो प्रहलाद महाराज इसी तरह पूरी तरह शरणागत थे वो। And that faith we need to make advancement in devotion. तो ये जो प्रहलाद महाराज के कोई एक महाजन है, तो उनसे हम ये चीज़ें सीख सकते हैं किस तरह भगवान पर आश्रित रहना और इस तरह भक्ति में हम लोग आगे कदम ले सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। Srila Bhaktivinoda Thakur makes this point that advancement in Krishna consciousness is a development of faith. इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ना मतलब श्रद्धा जो है जो शुरुआत में जो कोमल होती है और वो सुदृढ़ होती है, तो श्रद्धा जो कोमल होती है वो सुदृढ़ होना, उसको भक्ति में उन्नति करना कहते हैं। That faith develops in association with those who have faith. और जो श्रद्धा जो है कैसे डेवलप होती है, श्रद्धा कैसे विकसित होती है, जिनमें अटूट श्रद्धा है उनका जब हम संग लेते हैं साधु संग से, तो श्रद्धा जो है वो आगे हमारी और प्रबल होती है। Because many times if you come in contact with advanced devotees, the other devotees have the experience, all the worries go. तो ये ऐसा कई बार होता है हमारे साथ अनुभव कि हमारी बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, लेकिन जब हम किसी उन्नत भक्तों के संग में आते हैं, प्रभुपाद के संग में, गुरु महाराज के संग में, तो वो सारी जो चिंताएं हैं, कुंठ जो हैं, वो सब ऐसे मानो कि वो हवा में उड़ गए लगता है। Because it strengthens your faith. क्योंकि उनके संग से, साधु संग से जो है आपकी श्रद्धा जो है और वो प्रबल होती है। Any comments? तो महाराज जब पूछ रहे हैं कि कुछ प्रश्न है, कुछ किसी को कुछ पूछना है, कहना है। Yes, please. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you were speaking about faith of Prahlad Maharaj. Like he had firm faith on Lord Nrsimhadev. Like when I look at my life, I feel that I have faith, but not to that degree. Like I have faith that Krishna will protect me and he will provide what I need. But sometimes there is anxiety that Krishna might put me in some circumstance which is very uncomfortable for me, though it might be good for my bhakti. So I always have this fear that Krishna might put me in some situation which I don't want to be. So how can I remain calm and peaceful in that situation? Interesting point, yeah. ट्रांसलेट। तो प्रश्न ये है माता जी का कि जो प्रहलाद महाराज ने जो अपने प्रहलाद महाराज की बताया उनके बारे में कि कितनी श्रद्धा थी भगवान में, तो मैं देखती हूँ कि मेरे में भी श्रद्धा है और ये विश्वास है कि भगवान जो है मेरी रक्षा करेंगे और जो मुझे चाहिए वो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि भगवान मुझे शायद ऐसे कोई सिचुएशन में वो डाल सकते हैं या डालेंगे जो मतलब मेरे लिए मुझको लांघना जो है
वो मेरे लिए असंभव होगा वो। वैसे तो वो उन परिस्थितियों में भगवान मुझे डालेंगे, शायद डाल सकते हैं, तो इसका मुझे भय है। Well, it reminds me to a devotee that I met 20 years ago in Sweden. He was from South India and he became a pujari in Sweden, in one of our temples. तो मुझे महाराज बता रहे, मुझे एक कहानी याद आ रही। 20 साल पहले जो है स्वीडन में एक भक्त जो है वो मैं जानता था भक्त को, तो वो दक्षिण भारत से थे, वो दक्षिण भारत से थे, लेकिन वहाँ पर जो है संभव जो है स्वीडन में जो है एक मंदिर में जो है वो पुजारी की सेवा वो देने लगे। And later he moved to Spain, but he told me about his mother. वो कुछ समय के बाद वो स्पेन चले गए, फिर बाद में उन्होंने मदर Yeah. उनकी माँ के बारे में वो कुछ कह रहे थे। वो His mother, when he became a devotee, that she became angry. उनकी माँ जो है जब ये भक्त जो हैं जब ये भक्त बने तो उनकी माँ जो है बड़ी ही क्रोधित हुई उनसे। She was a devotee of Lord Shiva. वो शिव जी की भक्त थी वो। I said, I don't want to hear Krishna's name. तो उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण भगवान का नाम नहीं सुनना मेरे को। He said, he gave me only trouble. तो कृष्ण ने मेरे को हमेशा जो है परेशानी ही दी है। And then about 10 years later, she was leaving her body. जब 10 साल बाद जब वो अपने शरीर छोड़ रही थी, And he was chanting Krishna's name. तो वो जो बाजू उसके जो लड़के जो है कृष्ण भगवान का नाम जो उनके लिए जप रहे थे। And before she left her body, she went like this. और शरीर छोड़ने के पहले वो जो है ऐसे ऐसे वैसे जो कर रही थी। इस कभी कभी हम लोग भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Because you see the Mahabharata, all the Pandavas, they are suffering so much. हाँ, तो कह रहे हैं कि देखो ये पांडव देखो, मतलब कृष्ण भक्त जो बना है उसको क्या मिला है, पांडवों को देखो, कुंती महारानी को देखो, कितने परेशान हैं। But how to get that faith that Krishna will take care of me, and how does it really start? To have that faith that Krishna will take care of me. तो सही है। How can we develop that faith that Krishna will take care of me? हाँ, तो ये प्रश्न वही है कि हम ये कैसे श्रद्धा को हम विकसित करें कि कृष्ण भगवान जो है ऐसे गंभीर परिस्थितियों में भी डालकर भी यहाँ में हमारी सुरक्षा वो करेंगे। First we have to know who Krishna is and how he deals with his devotees. तो सबसे पहले कृष्ण भगवान का जो स्वरूप जो है, कृष्ण भगवान क्या है, कौन है, वो हमें पता होना चाहिए, उनका भाव, और फिर वो अपने भक्तों के साथ वो किस तरह वो सलूक करते हैं, तो इसका हमें बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। Once I was in real trouble, and I wrote Bhakti Charamach an email about what was happening. तो एक बार मैं खुद जो है एक बड़े ही घोर संकट में मैं पड़ गया था, तो मैंने हिज होलिनेस भक्ति शर्मा महाराज को एक पत्र लिखा उसके बारे में। He wrote him in an email, and 10 minutes later I had him on the phone. तो मैंने तो उनको ईमेल लिखा था, लेकिन 10 मिनट के बाद जो है मैं उनके साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। But he gave me one important instruction. तो एक बहुत ही मुख्य या आदेश, हाँ वो तो ठीक है, मुख्य आदेश निर्देश उन्होंने दिया। He said, whatever happens in your life, you must accept it, good or bad. You must accept it as the mercy of Krishna. तो एक मुख्य उपदेश जो दिया उन्होंने महाराज ने कि जो भी आपके जीवन में हुआ हो, अच्छा हो या बुरा हो, But that's a very deep. उसको जो है कृष्ण भगवान की कृपा के रूप में उसको स्वीकार करना है। But that's a very deep वो instruction. बहुत ही मतलब बहुत ही गुह्य नहीं, मतलब गहन प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत है, उसको स्वीकार करना। The mind and the intelligence fights against this. तो जो मन और बुद्धि जो है वो उसके विरोध करती है कि नहीं ये कैसे अच्छा हो सकता है। But what's the solution to overcome that?
What is the solution to overcome that? हाँ, बट कह रहे हैं कि यही है, मतलब और कोई उपाय नहीं है इसका उपाय यही है। The solution is hear the Bhagavatam. सॉल्यूशन जो है मतलब भागवत का श्रवण किया जाए। In the seventh canto, first chapter, Krishna's impartiality is explained. 7th कैंटो 7वें स्कंद में पहले अध्याय में युधिष्ठिर महाराज ये सब पूछ रहे हैं, तो उसमें जो है कृष्ण भगवान किस तरह वो निष्पक्ष हैं उसके बारे में जो है वर्णन है 7वें स्कंद के पहले अध्याय में। ये सब हिरण्यकशिपु की लीला सब शुरू होने के पहले है यहाँ। So one who always thinks of Krishna becomes purified. तो इस तरह जब कोई भी कृष्ण भगवान को सोचता है, जैसे शिशुपाल कहता है, वो निरंतर जब सोचता है तो भी वो शुद्ध हो जाता है। तो कृष्णा का ये नेचर है, स्वभाव है, हमारे बताया। Whether as an enemy or whether as a devotee. तो चाहे भगवान को अपने शत्रु के रूप में भी शिशुपाल, हिरण्यकशिपु, कंसा, वो भी जो है कृष्ण भगवान को लेकर निरंतर जो है स्मरण कर रहे थे, स्मर्तव्यो संतम विष्णु। तो लेकिन और या चाहे वो अभक्त हो या भक्त हो, अगर कृष्ण भगवान को स्मरण करे तो वो शुद्ध होगा वो। That does not mean that they get the same destination. इसका मतलब ये नहीं कि उनका गंतव्य एक ही है, But it's both beneficial whatever Krishna does. बट वो दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों उनके लिए जो है वो हितकारी ही हैं। Sometimes we are too much attached to something. तो कभी कभी जो हम बहुत आसक्त होते हैं किसी चीज़ से कि ऐसा हो वैसा, And we cannot let it go. और हम जो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। That then Krishna says in 1088:8 from the Bhagavatam. तो फिर कृष्ण भगवान कहते हैं 10वें स्कंद के 88th चैप्टर के 8वें श्लोक में। Yeah. And Prabhupada quotes that verse many times because he has experienced it in his own life. तो प्रभुपाद ने इस श्लोक को कई बार इंकित किया है, क्योंकि प्रभुपाद ने अपने जीवन में कई बार उसको अनुभव किया है। Krishna says in its verse how you can see that you receive this mercy. कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम देख सकते हैं कि किस तरह कृष्ण भगवान की कृपा है, वो कृपा है। That it says you can see that I'm giving my mercy if I take away everything what my devotee attached to. तो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो है अगर कभी वो किसी भक्त से सब कुछ छीन लेते हैं जिससे वो आसक्त हैं हरि, तो अगर वो छीन लेते हैं तो वो भगवान की कृपा है। So if Krishna sees my devotee is too attached and he wants to advance in devotional service, but it's too weak to let it go. तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि कहाँ निधि इज हियर, नहीं है, नहीं, बट लोग बहुत मतलब मेरे पास आना चाहता है लेकिन वो बहुत आसक्त है, किसी चीज़ को उसने जोर से पकड़ के रखा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान उसको फिर छुड़ाते हैं और बहुत दर्द होता है फिर। We are like someone is embracing a tree and he calls out, "Let me go, let me go." तो जैसे भक्ति सिद्धांत की एक कहानी है, तो ऐसा है महाराज बता रहे कि ऐसा जैसे कोई मानो एक व्यक्ति जो है उसने जो है वृक्ष को पकड़ के रखा है, आलिंगन करके रखा है, और वो कह रहा है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। And then someone comes, the spiritual master, and says, "But it's you who are holding on the tree." तो कोई गुरु आते हैं और बताते हैं कि वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने वृक्ष को पकड़ के रखा है। So we don't want to give up our attachment. तो हम अपने आसक्तियों को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, समस्या ये है। Arjuna did not want to give up his attachment. He did not want to kill Bhishma Dev. No, अर्जुना जो है वो अपनी आसक्तियों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं थे, भीष्मदेव को नहीं मारना चाहते थे। It's like a child. एक बच्चे की तरह है। A child is playing with a toy. छोटा बच्चा जो खिलौने के साथ खेल रहा है। And the mother had already three times the mother said, "Now you have to come for your dinner." माँ ने ऑलरेडी 3 बार कह चुकी है अब आपको भोजन के लिए आना है, But the child wouldn't listen. लेकिन बच्चा जो है वो सुन नहीं रहा है। And then the mother comes and takes the toy away. हाँ, जो मदर था जो माँ आती है वो खिलौना ले लेती है वो, And the child starts to cry. तो बच्चा जो है रोने लगता है। Krishna is like that.
तो कृष्ण भगवान ऐसे है। But there are three ways of learning. 3 तरह से सीख सकते हैं हम लोग। First class, second class, third class. तो पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। First class is someone hears that stealing is bad and say, okay, I will not steal. पहला कोई व्यक्ति जो है सुनता है कि जो चोरी करना बुरा है, वो सुनता है, वो समझ लेता है कि चोरी करना बुरा है। Second class is one hears that stealing is bad, but he has still the tendency. He gives it only up when he sees someone is arrested and say, okay, then I वो give it. समझ कर नहीं सीखते, लेकिन वो किसी को देखता है कि किसी ने चोरी की, और जब उसने चोरी की वो चोर जो है पकड़ा गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, तब वो समझता है कि हाँ ये खतरनाक है। Third class और तीसरा जो श्रेणी is that, okay, I hear stealing is bad, but I still want to steal. तो तीसरा I जो see है someone is arrested, I still want to steal. So he will only give it up when he's arrested himself. तो सुनता है, समझता नहीं है, देखता है किसी और को गिरफ्तार होते हुए, समझता नहीं है। फिर तीसरा जब वो खुद अनुभव करता है तब वो समझता है। So what's the best way to learn? तो सबसे श्रेष्ठ तरीका कौन सा है सीखने का? Hearing daily the तो Bhagavatam भागवत को श्रवण हर दिन, and try to learn by hearing the Bhagavatam. If we don't learn it in that way, then we have to learn the hard way. तो अगर हम लोग सुनकर नहीं सीखेंगे तो फिर अनुभव करके, मतलब दुष्कर रूप में जो हमें सीखना पड़ेगा। But every suffering we get in our lives is for the devotees, not just a reaction from his karma. तो खास करके भक्तों के जीवन में ये सिर्फ कर्मों के सिद्धांतों के कारण नहीं आ रही समस्या उनके जीवन में, तो भगवान का कुछ हाथ है उसमें। Because usually our karma goes quickly, and if we have still karma, Krishna gives us only a token of it. क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जब जो हरि नाम कोई शुरू करता है तो, और दीक्षा होने के बाद जो कर्म जो है के फल जो है वो उसका जो बैलेंस जो है वो चुकता हो जाता है, और अगर थोड़ा कुछ मिलता भी है तो जस्ट एक थोड़ा सा सिखाने के लिए एक छोटे से अनुपात में उसको मिलता है वो। But he uses your karma to purify. लेकिन आपके कर्मों को भगवान की इच्छा के अनुसार जो है वो किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं आपकी शुद्धिकरण के लिए। Even if we are pure, अगर हम शुद्ध हैं तो भी, or nearly pure, और प्राय न शुद्ध हैं, Krishna gives us still some suffering, so that we to make sure that we are not become attracted again. कृष्ण भगवान जो है कुछ न कुछ क्लेश हमें देते हैं ताकि हम जो है वापस जो है इस भौतिक जगत से हम आसक्त न हो जाएं। And Krishna can give suffering to his devotee to show to others, to use him as an example how the devotee deals with और suffering. कृष्ण भगवान जो है कभी कभी अपने भक्तों को भी इस तरह क्लेश दे सकते हैं, क्योंकि वो बाकी सामान्य जन को वो सिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो किस तरह क्लेशों के साथ जूझते हैं, सामना करते हैं, जैसे पांडव। On another level, that like the Pandavas, पांडव जैसे so Krishna gives them suffering just to facilitate his pastimes. और भगवान अपनी लीलाओं की करने के लिए भी जो है कभी कभी जो है इस तरह क्लेश देते हैं। But whatever Krishna does is all good. लेकिन कृष्ण भगवान जो भी करते हैं वो हमेशा शुभदा ही है, ऑस्पिशियस है वो। And therefore, whatever happens in our life, good or bad, we should learn to accept as तो Krishna. जो भी हो हमारे जीवन में, अच्छा हो या बुरा हो, तो हमें उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए, आना चाहिए। Not fight against it, just accept it. Krishna, thank you. And then you become satisfied. उससे जूझने का कोई मतलब नहीं है, तो लेकिन उसको हम स्वीकार करें और कृष्ण भगवान की शरण लें। I also try to apply that. कहते कि मैं भी इस शिक्षा पर अमल करने की मैं कोशिश करता हूँ। Sorry for the long answer, but I wanted to go a little deeper. कहते थोड़ा लंबा था उत्तर प्रश्न का, लेकिन थोड़ा गहराई में जाना चाहता था। Do you think it's helpful? Thank you. महाराज पूछ रहे हैं क्या I मदद। think we are way over time. Thank you. Okay, a last question maybe. Maharaj, as you said,
the hankering of for love, like from the people around us, like close members in our house, or and as you said, the higher principle is to love Krishna, to mold our life in that way where we increase more attachment towards Krishna. But as we are again in the, like as we hear this, we feel that we have to do that. But again, the conditioning is so deep that that desire of hankering of love from the other peoples around us, like who are near to us. So what? Please give the remedy, Maharaj. महाराज माता जी प्रश्न पूछ रही हैं कि आपने बताया कि हर एक व्यक्ति की दो चीज़ें हैं, उसकी चेष्टा, वो किसी से प्यार करना चाहता है, किसी से प्यार चाहता है। लेकिन आपने ये भी बताया कि कृष्ण भगवान की तरफ जो है, हम कृष्ण भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो फलीभूत होगा। लेकिन ये जो प्रवृत्ति जो है हमारी, तो ऑफकोर्स वो तो एक थोड़ा समय लगेगा कृष्ण भगवान की तरफ ही जाना, उसके उस प्रेम की अभिलाषा के साथ। लेकिन जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे भी हमारी इच्छा रहती है कि हमें प्यार मिले, तो प्यार करेगा तो आपने बताया नहीं, बट प्यार मिले तो हमें भी प्यार मिले, तो वो उससे हम कैसे ऊपर रहें? Well, that I was thinking of Queen Kunti. Queen Kunti says to Krishna, Maya Javana Ganikam. He said, your illusion energy has a great covering potency. कुंती महारानी जो है कहती हैं कि अवजानी का ये जो पर्दा जो है आपका, जो भगवान की जो योग माया या महामाया जो है, ये जो है बड़ी ही विस्मय करने वाली चीज़ है ये। And she prays to Krishna, please cut away my attachment to my sons. तो और वो प्रार्थना कर रही हैं भगवान से कि जो मेरी जो फेमिलियल अटैचमेंट जो है, जो मेरे फैमिली स्किन के आधार पर ये जो मेरी आसक्तियां हैं मेरे परिवार के सदस्यों के साथ, इनको आप जो है इनका आप क्षय कर दो आप। In the next purport, Prabhupada explains, Queen Kunti is not praying to take away the affection for other living entities. This is natural. 1841-42 महाराज बहुत कृष्ण लीला माता जी के हमने वर्कशॉप्स किए कई बार। ये महाराज बता रहे हैं कि कुंती महारानी ये नहीं कह रहे कि स्नेह जो है औरों के लिए भगवान हटा दें, क्योंकि जो स्नेह जो है वो मतलब एक जीने का एक सिम्टम है, इट्स अ सिम्टम ऑफ लाइफ, दीज एफेक्ट्स। The affection for other living entities is natural. तो कह रहे हैं कि वो स्वाभाविक है, उसको हम जीरो नहीं करना चाहते। But she is praying, cut off the material side of the affection. लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक धरातल पर जो है, भौतिक धरातल पर जो केंद्रित है वो स्नेह, उसके जो पाश जो हैं उसको आप काटें, और जो आध्यात्मिक धरातल पर जो है उसको आप रहने दें, कृष्ण भगवान के केंद्रित। So what's the material affection side? तो मटेरियल अफेक्शन क्या है ये? The material side is that Queen Kunti thinks they are my sons. Queen Kunti सोच रही हैं कि ये मेरे पुत्र हैं। But they are not our sons. They are eternal associates of Krishna, eternal souls. तो कह रहे हैं कि लेकिन वो उनके पुत्र ही नहीं हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, परिकर हैं, भगवान के संगीगण हैं। So if we give affection to others, we must consider Vidya Vinaya Sampane Brahmaka Avhasni Sunishirsha Pakacek Panida Samadakshan. We must see Krishna in their hearts. तो महाराज कह रहे हैं कि बहुत सुंदर चीज़ अफेक्शन, अगर हम स्नेह किसी को दे रहे हैं तो हमें जो है ये विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सपाकेश पंडित समदर्शिना। तो कह रहे हैं कि उन्हें हमें देखना है, समदर्शिना क्या है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति में जो है परमात्मा को देखता है, और परमात्मा के केंद्रित जो हैं फिर ये सारे संबंध जो हैं वो अगर हम लोग देखेंगे तो फिर वो जो भौतिक स्नेह जो है उसका क्षय होगा। But we should learn to give our affection to all living entities equally. महाराज देने की बात कर रहे हैं तो महाराज बता रहे हैं तो इस तरह जो है कि इस तरह हमें सारे लोगों को
स्नेह देना चाहिए इस आध्यात्मिक धरातल पर। So it is said that, yes, a mother loves her child and she served the child without asking something in return. And Prabhupada refers to this is the most pure love in this world. हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब जैसे माँ का जो प्यार जो है बच्चे के लिए और बड़ा ही वो निस्वार्थ होता है। जब माँ कुछ करती है अपने बच्चों के लिए तो वो ऐसा नहीं कि कुछ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है कि मतलब मैं ये कर रही हूँ वो चाहती हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो माँ का प्रेम जो है इस भौतिक संसार में जो शुद्ध प्रेम जो है सबसे जो निकट आता है वो है माँ का प्रेम अपने बच्चे। But it has also an impure aspect. लेकिन उसमें भी एक विशुद्ध मतलब पूरी तरह विशुद्ध नहीं है, उसमें भी जो है मिश्रता है। I am concerned with my sons, my children, not with the others. तो मैं जो मेरा जो क्षेत्र जो है सिर्फ मैं और मेरे, तो ये मेरे बच्चे की तरफ है वो ख्याल, लेकिन औरों के बच्चे की तरफ नहीं है, के प्रति नहीं है वो। So affection for others is natural. तो लेकिन स्नेह जो है औरों के लिए जो है वो स्वाभाविक है And that develops in the heart of a pure devotee. और वो जो है शुद्ध भक्ति के हृदय में सबके लिए वासुदेव कुटुंबम सबके लिए वो जो है विकसित होती He loves everyone because he loves Krishna. है। वो सबको प्यार करता है, प्यार करते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को प्रेम करते हैं। And I always think of Bhakti Charumaji. He was the friend of everyone. जैसे भक्ति चारू महाराज वो सबके वो सुहृद थे, सबके मित्र थे And he would give affection to everyone. और सबको वो स्नेह देते थे। That Prabhupada also. प्रभुपाद भी This is the pure devotee of Krishna. तो शुद्ध भक्त हैं ये ऐसे हैं। Prahlad Maharaj. प्रहलाद महाराज He said, I'm so concerned with all this, fools and rascals with all these rules, fools and rascals who are after Maya Sukha, illusory happiness in this world. प्रहलाद महाराज जैसे वो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे कुछ अपने लिए कुछ दुख नहीं है, पर दुख दुखी है, लेकिन ये जो जब मैं देखता हूँ बद्ध जीवों को कि माया सुख के पीछे ये भाग रहे हैं तो मुझे जो है उनको देखकर बड़ी दया आती है, करुणा आती है इनके ऊपर। That's the heart of तो वैष्णव a preacher. प्रचारक का वो भाव है। Good. Thank you very much. We say, Priyad Bhagavatamrita ki, Sanatana Goswami ki, Gopi Pranadana Prabhu ki, Srila Prabhupada ki. His Holiness Bhakti Prabha Maharaj ki jai, His Holiness Bhakti Charu Guru Maharaj ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you Maharaj for coming. I think we should have come to your place, but we were reading actually in this Brihad Bhagavatamrita that these Vaikuntha Vasis, they travel here and there to protect and inspire Vaishnavas. So somehow you came instead of we having come to you. So please forgive us. Thank you. Hare Thank you Krishna. for your Thank you. translation. And I think Mangal Prabhu had a desire, the host, where is Mangal Prabhu? He had a desire that you come to his house, I think, so it has somehow been fulfilled. Thank you. Your father is also here? Yeah, he is coming. He's coming, yeah, his father. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. फोन कहाँ गया?